السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ایک بہت لمبا عرصہ گزر رہا ہے لاک ڈاؤن کی صورت میں، اور لاک ڈاؤن میں ہم لوگ اپنی تدریس کو، اپنے پڑھنے اور پڑھانے کے عمل کو اسی رفتار کے ساتھ، جس رفتار کے ساتھ اسکول میں ہم لوگ چلتے تھے، اس کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں۔ لیکن اس میں ابھی بھی جو ہے وہ کچھ کمیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، جس کو پور کرنا بہت ضروری ہے۔ چلیے بچوں، اب ہمارے پاس وقت کی بھی کمی ہے، وقت کی اجازت نہیں دیتا۔ زوم میٹنگ میں کچھ اوقات فکس ہوتے ہیں۔ ہم دہم جماعت کی تاریخ کے تیسرے سبق کا مطالعہ کر رہے تھے، اور تیسرا سبق جو ہے وہ اطلاقی تاریخ۔ اطلاق کے معنی ہم نے دیکھا تھا، اطلاقی تاریخ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا تھا پچھلے پیریڈ میں، اور اطلاقی تاریخ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگ پچھلے پیریڈ میں دیکھ چکے ہیں۔ اس اسباق کے تعلق سے مختلف پی پی ٹی کے ذریعے سے ہم نے اس کے نکات کو اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ آئیے 5 منٹ میں ہم لوگ اس کا ریوائز کریں، پھر ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، آپ چاہے تو اسکرین کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، یا پوائنٹ میں اس کو لکھ بھی سکتے ہیں۔ چلیے، جی، تو ہم اطلاقی تاریخ کا مطالعہ کر رہے تھے کہ اطلاقی تاریخ کسے کہتے ہیں۔ اگلی سلائڈ بتلائیں گی۔ اس سبق میں ہم کو ان سارے نکات کے اوپر بحث کرنی ہے، ان سارے نکات کے اوپر ہم کو اپنی معلومات کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ ایک تو اطلاقی تاریخ کا تصور جو ہم لوگ کر چکے، اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق، اس پر ہم لوگ بات کر رہے تھے۔ یہ ٹاپک ہمارے لیے بھی ادھورا ہے، آگے کی سلائڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اطلاقی تاریخ اور آج کے زمانے میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ ثقافتی اور قدرتی ورثے کا انتظام کرنا ہم سب کے لیے کیوں ضروری ہے، اس پر بھی ہم آگے کی سلائڈ میں مذاکرہ کریں گے۔ اور مختلف پیشہ ورانہ شعبوں کے اندر تاریخ کا کیا رول ہے، اس پر بھی ہم معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم یہ دیکھ چکے تھے اطلاقی تاریخ سے کیا مراد ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کسی مضمون کو دوسرے شعبوں میں نافذ کرنا اور نتیجہ اخذ کرنا، یہ اطلاق کہلاتا ہے۔ اور اطلاقی تاریخ مطلب تاریخ کے مقاصد کو دوسرے مضامین پر تھوپ کر نافذ کر کے ان سے نئے نئے نتیجے نکالنا، یہ اطلاقی تاریخ کہلاتا ہے۔ اور اطلاقی تاریخ جو ہے وہ موجودہ زمانہ اور مستقبل کے زمانے میں ماضی کے جو واقعات گزر چکے ہیں ان سے سبق سیکھ کر حال کے زمانے میں اور مستقبل کے زمانے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، اس پر اطلاقی تاریخ میں غور کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اگلی سلائڈ کے اندر دیکھے تھے کہ آج تاریخ کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ روزگار کے ذرائع پیدا نہیں کرتی، یا تاریخ کے ذریعے روزگار کے ذرائع سے ان کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا آگے اگلی سلائڈ کے اندر کہ تاریخ سے روزمرہ کے جو ذرائع پیداوار ہے اور روزمرہ کی جو زندگی، اس میں تاریخ کا کیا رول ہے، یہ آنے والی سلائڈ کے اندر ہم لوگ اور معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے باقاعدہ ہمارے ہندوستان کے اندر بنگلور کے اندر ایک سر سرشٹی انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن اینڈ ٹیکنالوجی نام کا ایک ادارہ ہے، جس میں سینٹر فار پبلک ہسٹری نام کا ایک الگ سے شعبہ ہے، جس میں ہسٹری کی جو نئی نئی ایجادات ہو رہی ہے، ہسٹری کی جو پروجیکٹ ہے، اس کی جو تحقیقات ہو رہی ہے، اس پر کام کیا جاتا ہے۔ اور دوسری ملک کے اندر جو انسٹیٹیوٹ ہے، دوسرے ملک کی جو یونیورسٹی ہے، وہاں پر الگ سے ایک شعبہ ہے ہسٹری کے تعلق سے، جہاں پر مختلف تحقیقات پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ تو یہ غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں تاریخ کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم سماجی مسائل کا حل حاصل کر سکیں اور سماج کی افادیت کو
اور سماج کی اہمیت کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اس لیے تاریخ کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ موجودہ زمانے کے سماجی مسائل بہت سارے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا بے شمار سماجی مسائل ہے۔ بے روزگاری ایک مسئلہ ہے، اور اس کے بعد میں الٹریسی ایک مسئلہ ہے، دہشت گردی ایک مسئلہ ہے، بے شمار مسائل ہے۔ ان سارے مسائل اور سماجی افادیت کے فیصلے لینے میں ہم کو ماضی کے جو تجربات ہے اور ماضی کی جو تجزیہ ہے وہ ہمارے لیے ایک لائف لائن یا مشعل راہ ثابت ہو سکتی ہے، اس کا بھی ہم کو مطالعہ کرنا تھا، اس لیے تاریخ کا علم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھے تھے کہ تاریخ اور سیاحت کا کیا تعلق ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ تاریخ اور سیاحت کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سیاحت کی وجہ سے ہمارا جو معاشی ترقی ہے وہ ہو رہی ہے اور عوام کی دلچسپی بڑھتی ہے۔ سیاحت کے مقامات کو دیکھ کر عوام میں تاریخ سے شعور پیدا ہوتا ہے، تاریخی روایت کو جاننے کا اور حاصل کرنے کا ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخی عمارتوں کی نگہداشت کرنے کا ان کے اندر شوق حاصل ہوتا ہے، تاریخی عمارتوں کی حفاظت کرنا یہ ان کا ایک سماجی ذمہ داری، اس کا بھی احساس ان کو تاریخ کے ذریعے ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھے تھے بار بار ہمارے سامنے کہ بھائی تاریخ کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا تاریخ کا مطالعہ صرف تاریخ نویسیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عوامی تاریخ ہے اور ہر شخص کو عوامی تاریخ کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ تاریخ کو معاشی ذرائع سے بھی جوڑا جاتا ہے اور تاریخ کو آج کے موجودہ ترقی یافتہ دور سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ 21 صدی میں بھی تاریخ کی بہت ہی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیقات، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ اطلاقی تاریخ اور مختلف موضوعات کی تحقیق، تاریخ کا دیگر مضامین سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا کچھ اس میں پوائنٹ ہو چکا تھا، میں اب یہاں سے شروع کروں گا پہلے سے، تاکہ جو بچے اس پریڈ میں نہیں تھے وہ استفادہ حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب تاریخ کا مختلف شعبوں کے ساتھ، مختلف مضامین کے ساتھ کیا ربط ہے، تو یہاں پر میں شکل کے ذریعے بتلانے کی کوشش کی ہے، ڈائیگرام کے ذریعے سے، کہ تاریخ اور دیگر مضامین کا کیا ربط ہے، تاریخ اور فلسفے کا کیا ربط ہے، تاریخ اور سائنس کا کیا ربط ہے، تاریخ اور ٹیکنالوجی کے اندر کیا تعلق ہے، تاریخ اور صنعت و عفت و تجارت میں تاریخ کا کیا رول ہے، تاریخ اور انتظامی جو علوم ہیں، انتظامی علوم، اس میں تاریخ کا کیا عمل دخل ہے، اور تاریخ اور فنون کے اندر کیا آپس میں ربط ہے، اس کا ہم باریک بینی کے ساتھ میں مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم سب سے پہلے دیکھیں گے تاریخ اور فلسفے کا کیا ربط ہے۔ ٹھیک ہے، تو فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ فلسفہ کہتے کسے ہیں؟ فلسفے سے کیا ہوتا ہے؟ فلسفے سے ہمارے اندر فکری انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ فلسفے سے ہمارے اندر فکری انقلاب پیدا ہوتا ہے، اب وہ چاہے فکر جو ہے وہ سماج کے تعلق سے ہو، چاہے وہ فکر ادب کے تعلق سے ہو، چاہے وہ فکر ہمارے معاشرے کے متعلق ہو، چاہے وہ فکر ہمارے روزگار کے ذرائع سے ہو، ساروں کا جو تعلق ہے وہ فلسفے سے ہوتا ہے۔ اس لیے فلسفے کی تاریخ کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی سلائیڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ فلسفہ کن کن شعبوں میں، ٹھیک ہے، فلسفہ جو ہے وہ سماجیات کے اندر ہے، میں تھوڑا فٹافٹ کر لوں اس کو، میں نے تھوڑی بہت سلو دیا ہوں۔ فلسفہ جو ہے سماجیات کے اندر ہے، سماجیات کا علم ضروری ہے۔ فلسفے کے اندر معاشیات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، فلسفے کے اندر جو ہے وہ مختلف سیاسیات کے جو مضامین ہیں، پولیٹکس جو ہے اس کا مطالعہ بھی فلسفے میں کیا جاتا ہے، اور فلسفے کے اندر جو ہے وہ تاریخ کا مطالعہ تو بہت ہی اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی سلائیڈ پھر آپ کے منتظر ہے، ہم لوگ یہاں تک پہنچ گئے۔ فلسفہ اور تاریخ کا کیا تعلق ہے؟ کیا یہ بار بار نوٹیفیکیشن؟ فلسفہ اور تاریخ، مختلف نظریات کی ابتدا کے لیے فلسفے اور تاریخ کا تعلق ہے۔ زبان کی تاریخ میں کیا رول رہا ہے، مختلف قسم کی زبانیں اور تاریخ۔ فلسفہ جہاں آ گیا وہاں پہ ادب، تہذیب، تمدن، کلچر، سنسکرتی، یہ ساری چیزیں آ گئی، اور فلسفے میں زبان کا بہت ہی ضروری ہے، اور کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ بغیر زبان کے ہم اس تاریخ کا مطالعہ نہیں کر سکتے۔ ہڑپا تہذیب جو ہے یہ بہت قدیم تہذیب تھی، 1922 کی کھدائی میں جو ہے اس کا ہم کو علم ہوا، لیکن
वो जो तहरीरें मिली है उसको तहरीर को आज तक हम पढ़ा नहीं जा सका। अगर उस ज़बान को हम पढ़ लेते तो हमको और ज़्यादा बारीक बिनी के साथ में उस ज़माने की तारीख का पता होता। इसलिए फ़लसफ़ा और तारीख का मुताला बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद फ़िक्री रिवायत की पस मंज़र, मैंने आपको बताया फ़िक्री रिवायत बहुत ज़रूरी है। फ़िक्रें जब मुर्दा हो जाएगी तो इंसान मुर्दा हो जाएगा। इसलिए फ़िक्री रिवायत जो है उसका पस मंज़र क्या है, उसका मुताला फ़लसफ़ा में किया जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि साइंस के शोबे में साइंस और तारीख का क्या रब्त है। दूसरी जो पॉइंट था, एक पॉइंट तो ये था कि तारीख और फ़लसफ़ा, फिर एक पॉइंट है तारीख और साइंस, फिर टेक्नोलॉजी, फिर इंतज़ामी उलूम, ये सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट है साइंसी तारीख का इल्म क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है। जब ये तीनों डायग्राम आ जाएंगे तो आपको समझना ज़रूरी आ जाएगा। ये तीन नुकात की वजह से साइंसी तारीख का इल्म हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। नंबर एक, साइंसी दरियाफ्तें और उसूल साजी का दौर कौन सा रहा, कौन सी साइंसी ईजादात की दरियाफ्त किस दौर में हुई, इसका इल्म हमको तारीख से हुआ। दरियाफ्तों के पीछे, उस साइंसी तहकीकात के पीछे क्या वजूहात थी, क्या ज़रूरत पेश आई उन दरियाफ्तों को करने की, उन साइंसी उलूम को हासिल करने के पीछे क्या वजूहात थी, इसका इल्म भी हमको तारीख से होता है। और वो दरियाफ्तें, वो साइंसी दरियाफ्त किस दौर के अंदर हुई, किस ज़माने में हुई, कौन सा जो पीरियड था, तो उसका इल्म हमको तारीख से होता है। तो साइंस को जानने के लिए साइंस की तदरीस में भी तारीख का बहुत अहम रोल है। हम ये बात कर रहे हैं साइंस तारीख का दीगर मज़ामीन से क्या रब्त है, क्या ताल्लुक है। ये गालिबन ये डायग्राम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे कि साइंस और तारीख का ताल्लुक क्या है। तो साइंस और तारीख का ताल्लुक बहुत गहरा है। साइंसी दरियाफ्तें और उसूल साजी का जो दौर है वो तारीख से हासिल होगा। दरियाफ्तों के पीछे क्या वजूहात थी, उसका इल्म भी हमको तारीख से होगा। और दरियाफ्तों का ज़माना जो है वो किस ज़माने में कौन सी चीज़ें इन्वेंट हुई, उसका इल्म भी हमको तारीख से होगा। ठीक है। उसके बाद अब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे, टेक्नोलॉजी। आज का दौर जो है 21वीं सदी टेक्नोलॉजी का दौर है। और टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर जो है आज हर साइंसी और टेक्नोलॉजी की चीज़ों की बड़ी अहमियत है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे आएंगे। ये मुख्तलिफ तस्वीर के ज़रिए मैं आपको बताया कि टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है। सारी मशीनें जो है जो आज इंसान ने दुनिया को मुट्ठी में कर रखा है वो टेक्नोलॉजी की देन है। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की तारीख के पीछे तारीख क्या है वो देखिए इस सेंटेंस में। ये जो नया भी नीचे सेंटेंस आया, नई नई महारतें, पैदावार और तामीरात, इन सब के पीछे मशीनों का अहम रोल है। और जहां मशीन आ गई वहां पर टेक्नोलॉजी आ गई। जहां मशीन का तस्करा आया वहां टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी की तारीख से क्या हुआ, नई नई महारतें, स्किल, नई नई स्किलें आई। पुरानी और फरसुदा और बाबादम के ज़माने की जो स्किलें थी, महारतें थी, उनका खात्मा हुआ। पैदावार और पैदावार के ज़राए में इजाफा हुआ। नई नई तामीरात हुई। अब चाहे वो बिल्डिंग के शोबों में तामीरात हो या और किसी भी मामले में तामीरात हो, उन तामीरात के पीछे मशीनों की करम फरमाइयाँ है। और ये सारी चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी की वजह से हासिल हुई है। इसलिए टेक्नोलॉजी और तारीख की तदरीस का मुताला करना हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे अब टेक्नोलॉजी की तारीख को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखो बहुत अच्छी डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको बतलाने की कोशिश की है। इस पीपीटी को तैयार करने के लिए बच्चों आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत और कितने आपको मतलब आपके जहनों को ध्यान में रखते हुए पीपीटी तैयार की जाती है। एट्रैक्टिव पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने की हद तक इम्कान कोशिश करता हूँ ताकि तारीख जो है ये थोड़ा सा रूखा सूखा मजमून है, इसके अंदर किस तरह दिलचस्पी पैदा की जाए, इसको किस तरह एट्रैक्टिव बनाया जाए, जाजिब बनाया जाए, पुरकशिश बनाया जाए ताकि आपका जहन उस तरफ आ सके। इसलिए मैं
मुख्तलिफ पीपीटी के ज़रिए से और मुख्तलिफ डायग्राम के ज़रिए से आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन समझने में आपको आसानी होती है। तो टेक्नोलॉजी की तारीफ को समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। पहला पॉइंट, तामीरात की तब्दीलियाँ। आज तामीरात के शोबों में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, आज जो फलकबोस इमारतें बन रही हैं, आज बड़े बड़े जो ब्रिज बन रहे हैं, बगैर सुकून के जो ब्रिज बन रहे हैं, वर्ली का जो सी फेस पे जो ब्रिज बना हुआ है, या मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि इस तरह के जो ब्रिज बने हुए जो जिसमें सुतून नहीं होते, तारों पर खींचकर बड़ी बड़ी काफ़ी दूरी पर सीलिंग पर बनाया हुआ ये ब्रिज हमारी जदीद टेक्नोलॉजी की एक जिंदा और जावेद मिसाल है। तो तामीरात के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही है, इसकी वजह से टेक्नोलॉजी के तारीख का इल्म हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अशिया की पैदावार की तब्दीलियाँ। आज आपने देखी कि अशिया की पैदावार की तब्दीलियाँ, मुख्तलिफ अशिया जो है उनकी पैदावार के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही है, तो कौन सी अशिया को किस टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपको इस बात का मैं मिसाल के जरिए बता दूं कि किसी वाटर प्रूफिंग करना है, अगर कभी लीकेज, आज चूँकि बरसात का ज़माना है, बारिश का ज़माना है, तो इंसान जो है वो कितना ही सीमेंट लगा ले और कितने ही वाइट सीमेंट लगा ले या मुख्तलिफ़ किस्म के और उस पर डामर डाल ले या तारकोल डाल ले, लेकिन वो लीकेज का मसला ही रहता है। तो अशिया की पैदावार की तब्दीलियाँ, तो आजकल ऐसे ऐसे क्या बोलेंगे इसको, केमिकल्स आ गए हैं कि केमिकल्स को सीमेंट में या जो भी मसाले के अंदर अगर डाल दिया जाए तो लीकेज का मसला जो है वो दूर हो जाता है। तो अशिया की पैदावार के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही है, इसका इल्म भी हमको टेक्नोलॉजी के जरिए होता है। ये मिसाल के जरिए आपको मैंने बताया, फिलहाल मेरे जहन में जो है। उसके बाद आज खेती बाड़ी के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ज़राअत के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही है, बेशुमार। आज का किसान जो है वो पुराने किसान की तरह नहीं है कि चलो बैल ले लिया, 2 बैल ले लिया और एक हल ले लिया और निकल पड़ा अपनी खेती बाड़ी करने के लिए। आज का किसान जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी से वाबस्ता है। आप यूट्यूब के अंदर मुख्तलिफ वीडियो भी देखते होंगे कि किस तरह एक तनावर दरख्त को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, आपने देखा होगा। और अगर नहीं तो आप यूट्यूब पर जाइए और देखिए कि ज़रूरी पैदावार के अंदर किस तरह तब्दीलियाँ आ रही हैं, फसलों की कटाई से लेकर तो फसलों को पानी देने तक के और सारी चीज़ों को निकालने में आज जो है वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जैसा मिसाल के तौर पर भुट्टे को छीलना है तो हाथ से छीलने में बहुत मेहनत दरकार होती है, लेकिन उसको मशीन के ज़रिए से या लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जो है साइकिल पर वो लगा कर उसको, तो ये ज़राई पैदावार के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही है, उन तब्दीलियों का मुताला करने के लिए टेक्नोलॉजी की तारीख का मुताला करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से जो पैदावार और उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही है, उसके लिए भी जो है तारीख का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। ये इस पर चूँकि हम लोग बात कर चुके, इसलिए ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं करूँगा साइंस और टेक्नोलॉजी के बात ताल्लुक से। इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर तब्दीलियाँ आ रही है, आपको पता है, आप अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि इंजीनियरिंग के शोबे के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, और ये तब्दीलियाँ जो है वो टेक्नोलॉजी के ही देन है। टेक्नोलॉजी वजह से आज मुख्तलिफ़ किस्म के इंजीनियर जो है वो कम वक्त के अंदर एक बहुत ही जामे और दिलकश चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। भले ही वो मुस्तहकम नहीं होती, मजबूत नहीं होती, देरपा नहीं होती, लेकिन उसके बनाने में जो है, या मिसाल के तौर पर अभी कोविड का जो चल रहा है मसला, हमने हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के अंदर देखा कि कितने कम वक्त में, जापान में कितने कम वक्त में उन लोगों ने जो है तकरीबन गालिबन 7 दिन के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा अस्पताल जो है वो बना लिया, ठीक है। ये कुछ 18 माले का। जी, ठीक है, 18 माले का उन्होंने जो है वो बना लिया, ठीक है। ये जूम मीटिंग, ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में गालिबन आ रही है। स्टॉप तो कर देता हूँ शेयरिंग। अब 10 मिनट का हमारे पास वक्त बचा हुआ है, मैं और भी अगला आपको पढ़ा देता हूँ ताकि वक्त हमारा ज़ाय ना हो। थोड़ा सा नेटवर्क का मसला था जिसकी वजह से स्क्रीन हमारी चलेगी, ठीक है। क्या बोल रहे? चलिए,
ये स्लाइड पर हम लोग आते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइड पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। जी जी, इंतजामी उलूम और तारीख। तारीख और इंतजामी उलूम का क्या रब्त है, क्या ताल्लुक है। इंतजामी जो अदारे है, इंतजामात जो है वो चाहे इलाके की सतह पर इंतजामात हो या बाजार के मंडी के इंतजामात हो या चीज़ों के खरीद और फरोख्त के इंतजामात हो, उसमें तारीख का क्या रोल रहा है, इंतजामी उलूम और तारीख। चलिए देखिए, ज़राए पैदावार, पैदावार के ज़राए जो है और उनका इंतज़ाम किस तरह किया जाए। पैदावार ज़्यादा हो रही है तो उसके एतबार से तिजारती मंडियाँ कितनी होनी चाहिए, बाजार कितने होने चाहिए, आमद रफ्त के ज़राए कितने होने चाहिए, इन सब का मुताला इंतजामी उलूम की तारीख में ही होता है। इंसानी कुव्वत की पैदावार, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ख़रीद व फ़रोख्त। इंतजामी उलूम की तारीख में इस बात का भी मुताला किया जाता है कि ख़रीद और फ़रोख्त की तारीख में क्या चीज़ें हैं, कीमत ख़रीद कितनी हो, कीमत फ़रोख्त कितनी हो ना, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो पॉइंट्स है इसका मुताला इंतजामी उलूम की तारीख में होता है। वक्त की नज़ाकत की वजह से मैं ज़्यादा इस पर बात न करूँगा, और चूँकि आगे बहुत सारा पढ़ना है। बाज़ार के इंतजामात कैसे होने चाहिए, ठीक है। आमतौर पर जो होता है वो इस एतबार से बाज़ार के इंतजामात होते हैं कि कोई चीज़ को अगर हमको लेना है तो उसका खाम माल भी वहीं मिल जाता है और उसका रॉ मटेरियल वगैरह भी करीब में मिल जाता है। तो ये बाज़ार के इंतजामात, मतलब बाज़ार के अंदर अगर कोई इंतजामी उमूर के एतबार से कोई चीज़ लानी है तो उसके लिए बाज़ार में चौड़ी सड़कें है या नहीं है, या गोडाउन है या नहीं है, इस सब का इंतजामात का मुताला हमको इंतजामी उलूम की तारीख से होता है, ठीक है। उसके बाद माजी के इंतजामात, पहले क्या करते थे लोग, किस किस्म के इंतजामी उलूम में माजी के इंतजामात कैसे होते थे। जैसा आपने देखा हड़प्पा तहजीब में जो है वो एक गोडाउन मिला है खुदाई के दौरान, तो उससे इस बात का पता चलता है कि हड़प्पा तहजीब के लोग जो है वो तिजारत से वाकिफ़ थे। तो माजी में लोग जो है वो चीज़ों को सेफ रखने के लिए उनके पास कौन कौन से इंतजामात होते थे, चूँकि तारीख का इल्म हमको माजी के ज़रिए होता है, इसलिए इसका मुताला करना हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके बाद फिर जो है लोगों की क्या रिवायती ज़हनियत थी, इंतजामी उलूम के पीछे लोगों की क्या रिवायती थी, क्या ज़हनियत थी, इन सब का मुताला करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो बच्चों ये तारीख जो है, ये तारीख सारे मज़ामीन की माँ है। मैं इन पिक्चर के ज़रिए यही बात बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तारीख का ताल्लुक फ़लसफ़े से भी है, तारीख का ताल्लुक साइंस से भी है, तारीख का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से भी है, तारीख का ताल्लुक जो है इंतज़ामी उलूम से भी है, तारीख का ताल्लुक जो है वो सनअत और इर्फ़त से भी है, मशीनों से भी है, तारीख का ताल्लुक फ़नून से भी है। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी इतना हमारे पास वक्त नहीं है। मैं अभी स्क्रीन शेयर करना स्टॉप करता हूँ और अब आपकी तरफ आता हूँ कि आपने इस पीरियड में कितनी मालूमात को अख्ज़ करने की कोशिश की, ठीक है। अब सब फ़ौरन अपने अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और मेरे सवालात के जवाब देंगे। हमारे पास आज काफ़ी वक्त है रिवीजन करने के लिए, मैंने जानबूझकर थोड़ा वक्त आपका ज़्यादा लिया हूँ ताकि मैं अब जांच सकूं कि आप मालूमात को अक्स कर रहे हैं या बस पीपीटी में बस खोए हुए हैं, ठीक है। चलिए, मैं बारी बारी एक एक से मैं सवाल करूंगा और आप उसका जो है फ़ौरन अपना माइक ऑन करेंगे और जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नूर, नूर, जी सर। नूर बताइए, तारीख और दीगर कौन कौन सी मज़ामीन जिसमें तारीख का मुताला करना ज़रूरी है। सर साइंस, टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। फलसफा, और ज़राअत, सनअत और इर्फत। ओके, ठीक है। दावा साहब, जी सर। दावा साहब बताइए, फलसफा, फलसफे में किस किस चीज़ की फलसफा, कौन कौन सी चीज़ का फलसफा। फिक्री रिवायत, ओके, फलसफा किस चीज़ का,
जल्दी जल्दी। मैंने जो पट्टे पट्टे वाली स्लाइड जो आ रही थी धीरे धीरे ऊपर, एक 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 एक। सर मैं बोलूं? समाजियत, सियासियत, वेरी गुड, वेरी गुड, माशियत, वेरी गुड। तारीख। ओके, अच्छा, फलसफे में समाजियत का क्या रोल है? मुबीन? बोलिए, कोशिश करिए। फलसफे के अंदर समाजियत है ना, पहला पॉइंट समाजियत। तो समाजियत का मुताला क्यों किया जाता है फलसफे में? कौन बोलेगा? कैफ, कैफ जाकिर, खान कैफ जाकिर, हाँ सर। बोलो। फलसफे के अंदर समाजियत का मुताला क्यों किया जाता है? वासिफ? नहीं, सब खामोशी। कौन बोलेगा? और शाहनवाज, सोहेल, धागा? समाज, समाज, हम समाज में रहते हैं। समाज में फलसफे का बहुत बारीकी से मुताला किया जाता है। फलसफा ही कहते हैं फिक्री इनकलाब को, समझ लो। फलसफा मतलब फिक्री इनकलाब। अब समाज में क्या फिक्रें आई, पहले का समाज कैसा था, अभी का समाज कैसा है। ठीक, समाज में बेशुमार मसाइल है, मैंने आपको बताया था। रोजगार का मसला, नाखवानदगी का मसला, जहालत का मसला, दहशतगर्दी का मसला, ठीक है, बेरोजगारी का मसला, हिफ्ज़ान सेहत का मसला, रिहाइश का मसला, रिहाइश के पीछे और बहुत सारे उलूम हैं। इन सब का मुताला करने के लिए फलसफा और समाज के अंदर आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है, ज़राई पैदावार में क्या तब्दीली आ रही है? कौन बताएगा, ज़राई पैदावार में क्या तब्दीली आ रही है आजकल? वासिल थोड़ा ध्यान देना, ये कौन से बच्चे रिमूव हो रहे हैं, थोड़ा देखना। पहले कुछ तादाद कुछ और थी, अभी तादाद कुछ और है। ठीक है, नोट डाउन करना है। शफीक बोलेंगे बेटा आप? सर खेत जोतने के लिए हल के बदले अभी ट्रैक्टर यूज हो रहे हैं, पानी डालने के लिए अभी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, और खेत को बचाने के लिए भी अभी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। वेरी गुड। अब हम जो है वो कुदरती ज़राए पर डिपेंड नहीं है कि बारिश होगी तो हम खेती बाड़ी करेंगे। अब ट्यूबवेल के ज़रिए से, आबपाशी के ज़रिए से, दरियाओं पर बंद बांध कर और बहुत दूर दूर इलाकों से ट्यूबवेल के ज़रिए से, पाइपलाइन के ज़रिए से खेती बाड़ियों को पानी पहुँचाया जा रहा है। मशीनों के ज़रिए पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जरासीम कश दवाओं का इस्तेमाल करते हुए पैदावार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो ये सारे पॉइंट जो है बच्चों हमने आज इस सबक में देखा। अगले पीरियड में हम लोग फिर इसके बारे में इंशाल्लाह मालूमात हासिल करेंगे नए अज़्म, नए हौसले के साथ में। तब तक आप जो है अपने ज़ाती मुताले के ज़रिए से इस सबक को पढ़ते रहे, घर में रहे, सेफ रहे और बस इल्म हासिल करते रहे।